गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम श्योर आपने मेरा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला जो वीडियोस होंगे वो जरूर देखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। आई मीन एमीन्स आर देयर इन आवर सिलेबस। व्हाट आर एमीन्स? Amines, basically these are ammonia derivatives. These are ammonia derivatives. Means when one hydrogen of ammonia is replaced by R, we get RNH2. If two hydrogens are replaced, we get R2NH. If three hydrogens are replaced by alkyl group, we call it this 3R3N. This is primary amine and this is secondary amine and this is tertiary amine. Primary amine has two hydrogens, secondary amine has one hydrogen attached with nitrogen, and tertiary amine is not having any nitrogen attached to it. If this NH2 group is directly attached to benzene ring, we call it aryl amine, right? And aryl amine, its common name is aniline, and its common name is very common. Aniline is its name. These are the alkyl amines, primary, secondary and tertiary, and this is aryl amine, we call it aniline. To understand their nomenclature, let us take one example. Now the question is C4H11N isomers आप draw कीजिए. Write down their IUPAC names and tell the relation between these three. C4H11N के isomers draw करने के लिए first of all what you have to do, 4 carbon एक line में लगा दो. Total 4 carbons are there. Put these 4 carbons in one line and NH2 group will come here, right? And H can be balanced. You know how to balance 3, 2, 2, 2 and this NH2. Now you have to do take this NH2 group and shift it to second carbon like this. सेकेंड कार्बन पे इसे आप कर दीजिए CH3 CH CH2 CH3. अब इस NH2 ग्रुप को हम इस कार्बन पे ला सकते हैं. ये आइसोमर्स बनाने का तरीका होता है. पहले 4 कार्बन्स को एक वन लाइन में बना दो, NH2 ग्रुप को साइड पे लगा दो और फिर NH2 को उठा के सेकेंड पे लगा दो. इस पे लगा सकते हैं लेकिन बाय चांस सेम बन जाएगा क्योंकि अगर इधर से लगेगा तो 2 ही बनेगा. तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आप 3 कार्बन की चेन्स बनाइए, राइट? यहाँ पे NH2 रहने दीजिए. जो कार्बन आपने लेस किया है उसकी पोजीशन को बदलो, आप यहाँ लगा दीजिए इसे. नेक्स्ट में वंस अगेन 3 कार्बन की चेन. अब इस NH2 को उठा के भी इस कार्बन पे लगा दे तो ये एक और आइसोमर बन जाएगा लाइक दिस. अब इससे कम की चेन बन नहीं सकती तो अब हम सेकेंडरी अमीन बनाते हैं. NH को बीच में रखिए, 3 कार्बन दिस साइड, 1 कार्बन दिस साइड. अब इस कार्बन का 2 कार्बन दिस साइड, 2 कार्बन दिस साइड. ये सेकेंडरी अमीन बन गया. C4H11N के ये आइसोमर्स हैं, राइट? अब हम टर्शरी वाला बनाएंगे. N को बीच में रखिए और 4 कार्बन को एडजस्ट करना होता है. मेरे ख्याल से इसका एक ही बनेगा, राइट? सो इसका नेम है 1, 2, 3, 4. इट्स नेम इज ब्यूटेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं या खाली एमीन भी लिख सकते हैं. जब हम खाली लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है 1 पे ब्यूटेन 1 एमीन. मैंने ई यहाँ पे ड्रॉप कर दिया बिकॉज नेक्स्ट जब वॉवल होता है तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं. एंड दिस इज 1, 2, 3, 4. इट्स नेम इज ब्यूटेन 2 एमीन. इट्स नेम इज ये ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 2 amine. And what is this? 1, 2, 3. 2 पे एक substituent है मिथाइल. Its name is 2 methyl propane 1 amine, right? And here 1, 2, 3. 2 methyl propane 2 amine, right? Its name is, now जो small number of carbon atoms हैं उनको आप n का substituent में ला लो. small number को n का हम substituent बना लेते हैं. so it will be 1, 2, 3 और ये n पे लगा हुआ है तो इसे कहेंगे n methyl propane amine. Its name is n methyl
propane amine. And this is both sides same number of carbon atoms are there. एक को substituent बना लो और एक को parent chain में count कर लो. It will be N-ethyl ethane amine. N-ethyl ethane amine. Right? अब इस नाइट्रोजन पे 2 substituents are there. These two are the substituents. We call it NN because N पे 2 बार लगा हुआ है substituent, तो N को twice लिखेंगे. NN dimethyl ethane amine. Right? So these are the isomers of C4H11N formula and these are the IUPAC names. चलो इनको नंबर दे देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? The next question is कि इनके रिलेशन बताओ आपस में. You know 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? Its name is butane 1 amine. Its name is butane 2 amine. 1 और 2 का फर्क है यानी कि position is different. So 1 and 2 are position isomers. Right? Now ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? इसके IUPAC नेम में प्रोपेन वर्ड है, इसके IUPAC नेम में ब्यूटेन है. चेन की लेंथ का डिफरेंस है तो हम लोग 1 and 3 को कहते हैं दे आर द चेन आइसोमर्स. इनको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. राइट? अब ये सेकेंडरी अमीन को देखिए. फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की संख्या डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का नंबर डिफरेंट हो उसे हम मेटामर्स कहते हैं. सो 5 and 6 आर मेटामर्स टू ईच अदर. राइट? उसके बाद है अगर आप ये देखें तो ये प्राइमरी एमीन है बिकॉज 2 H are there. प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन. These two are the secondary amines and this is the tertiary amine. You know primary, secondary and tertiary तीनों आपस में एक दूसरे के functional isomers लगते हैं. Means आप इधर से 1 को ले लीजिए. 1, 5 and 7 are functional isomers. इनको हम functional आइसोमर्स कहते हैं. मैंने आपको इनकी आइसोमर्स बनाना भी सिखा दिया और नेम कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया. प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का. और अगर हम अमोनिया को NH2 ग्रुप को बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं तो उसे हम एनिलीन कहते हैं. सपोज एनिलीन के साथ मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो देयर. वी विल कॉल इट 2-methyl, sorry this is NH2 group, 2-methyl aniline. So these will be the derivatives of aniline, right? So this is all about the IUPAC nomenclature, their introduction and their relation between each other because they show position isomerism, they show chain isomerism, they show metamerism, they also show functional isomerism. जो just have its screenshot, right? Now next is this was the introduction, methods of preparation of amines. Methods of preparation of amines. The first method is Hofmann's ammonolysis. Hofmann's ammonolysis. What is this? Whenever alkyl halide can be methyl, ethyl, propyl, butyl. R stands for any alkyl group. When alkyl group is treated with ammonia, then what will happen? One H will go with X minus HX. You will get RNH2 and we call it primary amine. But this reaction will not stop here. ये reaction यहाँ नहीं रुकेगी. ये अपने आप चलती चली जाएगी. एक और RH से reaction करके R2NH यानी कि सेकेंडरी अमीन बनेगा और फिर HX निकल जाएगा और ये फर्दर रिएक्शन करेगा आप RX के साथ माइनस HX you will get R3N. This is tertiary amine. Reaction is still not stopping, so ये बन जाएगा R4N positive X negative. This is known as quaternary ammonium salt.
So when alkyl halide is treated with ammonia, then we get the mixture of primary, secondary, tertiary amine and quaternary ammonium salt. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फ्री होंगे? नो, ये बेसिक इन नेचर है और ये एसिडिक इन नेचर है। ये सॉल्ट बना लेंगे, ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा और ये ऑलरेडी इसके साथ सॉल्ट बना ही रहा है। रादर हमको लास्ट में सॉल्ट का मिक्सचर मिलेगा, बट हमें तो फ्री एमीन्स चाहिए, हमें नहीं चाहिए सॉल्ट किसी का भी। फ्री एमीन्स कैसे मिलेगा? इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, थोड़ा सा इसमें NaOH डाल दिया जाता है इस रिएक्शन में। क्यों? ये NaOH जो HX बनेगा हर स्टेप पे उसके साथ मिलके सॉल्ट बना लेगा और इस अमोनिया के साथ जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बने हैं इनके साथ ये सॉल्ट नहीं बना पाएगा। सो इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें बेस डालना पड़ता है, राइट। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड एमाइड्स। अब इसकी रिडक्शन किससे की जाती है? साइनाइड्स की। टेक साइनाइड RCN, मीन्स आप कुछ भी ले सकते हैं। चलो एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। C2H5CN, इसका नाम है इथाइल साइनाइड, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोपेन। इस कार्बन को इसके साथ काउंट करेंगे IUPAC नेम में, इट विल बी प्रोपेन नाइट्राइल, राइट। नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। जब हम साइनाइड लिखते हैं तो इसको इथाइल, 1 कार्बन लेस का हम लोग नंबर देते हैं। इसमें आप इसकी रिडक्शन कीजिए, किससे कर सकते हैं? आप राने निकल डाल सकते हैं प्लस हाइड्रोजन, या फिर आप डालिए इसमें सोडियम और अल्कोहल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है ये सारे। ये क्या करेगा? 2H इसको मिल जाएंगे, 2H इसको मिल जाएंगे, तो यू विल गेट C2H5CH2NH2, यानी कि यू विल गेट प्राइमरी एमीन। सो रिडक्शन ऑफ साइनाइड गिव्स प्राइमरी एमीन। Whenever the reduction is carried out with sodium and alcohol specially, अगर हम इसकी रिडक्शन सोडियम और अल्कोहल के साथ करते हैं, केवल ये दोनों यूज नहीं करते, तो इसे हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। स्पेशली हम इसे कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। और अगर हम साइनाइड की बजाय अगर हम एमाइड लेते हैं CH3CONH2, इट इज इथेन एमाइड, राइट। इथेन एमाइड कहते हैं इसको। और इसकी रिडक्शन पे हमें क्या मिलेगा? सपोज वी टेक सोडियम अल्कोहल वंस अगेन, ये भी हमें प्राइमरी अमीन देगा, CH3CH2NH2। बट अगर हम साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड ले लें, लाइक CH3N+C, दिस इज आइसोसाइनाइड। और अगर हम इसकी रिडक्शन करें सोडियम और अल्कोहल के साथ, 1H इसे मिलेगा, 3H इसे मिलेंगे, लेकिन ये यहां से दूर नहीं होंगे। सो वी विल गेट CH3NHCH3, यानी कि हमें मिलेगा सेकेंडरी एमीन। साइनाइड की रिडक्शन से प्राइमरी एमीन और आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से सेकेंडरी एमीन, राइट। सो नेक्स्ट मेथड इज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको लर्न होता चला जाएगा। सो हमारा थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, राइट। अगर हम RNO2 नाइट्रो एल्केन लेते हैं, या फिर हम नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए दोनों में से, इसकी रिडक्शन हम लोग करते हैं टिन और HCl के साथ, या फिर हम लोग लेते हैं आयरन एंड HCl, राइट। इसकी भी रिडक्शन इन दोनों में से कर दीजिए। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों करते हैं? आयरन के ऊपर HCl डालिए तो FeCl3 और हाइड्रोजन निकलती है नेसेंट, वो रिडक्शन के काम आती है। सो RNO2 विल बी कन्वर्टेड टू RNH2, राइट। और ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और मेरे ख्याल से जितना भी एनिलीन है हमारी केमिस्ट्री में वो सारा का सारा नाइट्रोबेंजीन से ही आता है। इसकी आप रिडक्शन करें तो आपको ये मिलेगा। नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो टिन और HCl से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये पहले FeCl3 बनाता है रिएक्शन करके, ये फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस करके HCl आपको वापस कर देता है, यानी कि HCl इसमें रीजेनरेट हो जाता है, राइट? इसलिए ये बेटर मेथड होता है। फोर्थ मेथड है हमारा गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस। Gabriel's Thalamide reaction is the better term. Gabriel's Thalamide reaction. You know, Gabriel is the name of scientist and Thalamide. What is this Thalamide? ये देखो, अगर हम यहाँ पे COH लगाते हैं ना तो थैलिक एसिड बन जाता है, लेकिन अगर हम OH को हटा के NH लगाएंगे तो थैलीमाइड बन जाएगा। इसमें आप पहले डालिए KOH and you will get ये जो H है रिप्लेस होके यहाँ पे K आ जाएगा। उसके बाद आप डालिए CH3Cl तो K रिप्लेस होके CH3 आ जाएगा। आप यहाँ पे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी R ले सकते हैं, राइट? तो आपको मिलेगा NCH3। अब ये NCH3 की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3NH2 प्लस थैलिक एसिड मिलेगा आपको। अब इस थैलिक एसिड का थैलीमाइड बना के कैसे बनाते हैं? अमोनिया के साथ हीट कर दो तो आपका थैलीमाइड वापस बन जाएगा। तो ये तो रिसाइकिल हो गया, ये आपको मिल गया प्राइमरी एमीन। नाउ सी केयरफुली, दिस इज थैलीमाइड। पहले H को हटा के पोटेशियम लाइए या सोडियम, फिर एल्काइल हैलाइड, K हटेगा, मिथाइल विल मेक एन एंट्री, ऑन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट प्राइमरी एमीन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम इससे सेकेंडरी अमीन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के लिए यहाँ पे कम से कम 2 H होने चाहिए थे, तभी तो 2 मिथाइल ग्रुप एंट्री करेंगे या 2 R ग्रुप आएंगे, तो सेकेंडरी नहीं बना सकते, टर्शरी तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ओके, क्या हम इस मेथड से एनिलीन बना सकते हैं? एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। व्हाई? बिकॉज इसको बनाने के लिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, और हम सबको पता है कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है, बिकॉज एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव। इसीलिए हम लोग इस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते। Gabriel Thalamide reaction is basically used for preparation of primary amines only, and that in the pure state also. Secondary and tertiary amines cannot be prepared because in Thalamide only one replaceable H is present. Aniline also cannot be prepared by this method because aryl halide is very less reactive. Take it screenshot. Next method is Hofmann's bromamide degradation. Hofmann is the name of scientist. ब्रोमामाइड, ब्रोमीन भी लेंगे, एमाइड भी लेंगे। हम इसे डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो बनता है उसमें एक कार्बन लेस होता है, डिग्रेड हो गया कार्बन की चेन का, तभी इसका नाम पड़ा डिग्रेडेशन। लेट अस टेक CH3CONH2 इथेन एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस KOH, ये तो शगुन है, हर रिएक्शन में आ जाता है, राइट? इस रिएक्शन में CO बीच में से गायब हो जाता है और आपको मिलता है CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O. Finally, we are getting amine from amide with one carbon less.
सो दैट्स व्हाई इट इज सेड डिग्रेडेशन। देखो हमने इसमें स्टार्टिंग में 2 कार्बन्स थे चेन में, इसमें 1 है। और अगर हम बेंज एमाइड ले लेते हैं CONH2, वही सेम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करिए KOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ये CO कम हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा एनिलीन, राइट। आपके एनसीईआरटी में रिवर्स क्वेश्चन भी है, जैसे आपको लिखा हुआ है वहां पे, आपको चाहिए प्रोपेन एमीन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाले मेथड से, तो आप क्या लेंगे, ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में एक CO डाल दो, मींस जो मेन रिएक्टेंट होगा वो ये होगा ब्यूटेन एमाइड। इसको आप रिएक्शन करिए ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ, बाय प्रोडक्ट्स इसके भी सेम होंगे, मीन्स K2CO3 KBr और वाटर आपको बाय प्रोडक्ट में ये मिलेंगे। सो दिस इज द हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। जितने भी मेथड्स थे प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स के, वो मैंने आपको सारे करा दिए। इसके बाद हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये पढ़ना होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है अपने पिछले और अगले चैप्टर से, और दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर में। देखो हमने एमीन की शक्ल देखी है, RNH2 2 H होते हैं और वो भी नाइट्रोजन से जुड़े हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में 1 H है, राइट, टर्शरी में नहीं है, राइट। जिसके पास H होगा वो वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएगा। सो जितने भी एमीन्स हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाटर के साथ H बॉन्ड बनाते हैं, राइट। कैसे, RNH2 है, H तो मैंने अलग कर दिए, OHH लाइक दिस, और ये कंबाइन करते चले जाएंगे RNH2 के साथ, तो इसलिए इसमें सोल्यूबल है। आपको पता है R का नंबर जब बढ़ता है तो वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ये वैसे तो 4 कार्बन तक सोल्यूबल होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक सोल्यूबल है, उसके बाद ये सोल्यूबिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाती है और जो हायर एमीन्स है वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे, राइट। अब चलते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट पे। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस होता है। वाई, इनकी H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और एमीन्स की H बॉन्डिंग वीक होती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को कंपेयर करें, टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। वाई, वंस अगेन 2H होने की वजह से इट विल शो H बॉन्डिंग और टर्शरी वाला इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे आर सोल्यूबल इन वाटर अप टू 6 कार्बन ओनली, वैसे 4 तक होते हैं, 5 के बाद वाटर हीटिंग जो फैक्टर है ना वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। और इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स देखें, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड थे तो इनके कम होते हैं, लेकिन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी को कंपेयर करेंगे तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। So this is about the physical properties. Next are chemical properties. Guess करो, chemical properties में नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, उसके हेड पे एक लोन पेयर हमेशा बैठा ही होता है डोनेशन के लिए, तो बेसिक तो होंगे ही होंगे ये सारे, राइट। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, all the amines are basic in nature. Amines are basic in nature. Why? Because of presence of lone pair of electron. Right? लेकिन असली प्रॉब्लम ये है ये पता लगाना कि कौन कितना बेसिक है और कौन कितना कम बेसिक है। हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया बेसिक है बिकॉज लोन पेयर डोनेट कर देता है। ओके, अब एल्काइल एमीन है, ये भी बेसिक होगा बिकॉज लोन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन एमीन्स अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दिए जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काबिल हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होता है। ओके, अब हम एनिलीन पे आते हैं। यू नो जो एनिलीन है ये इससे भी वीक बेस है।
क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन अपनी तरफ खींच लेता है। जो बेंजीन है इसमें इसका प्लस आर इफेक्ट शो होता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और डोनेशन के लायक नहीं रहेगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से कम है, इनका इनसे ज्यादा है। चलो अब हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं एल्काइल एमीन्स पे, राइट। RNH2 को जब आप वाटर में डालते हैं तो आपको मिलता है RNH3। कैसे? ये लोन पे डोनेट करेगा, H को बोलेगा वाटर के तू इधर आ जा, लो ले लिया, और वाटर का जो OH है उसको फ्री कर देता है। इन्हीं OH नेगेटिव आयोन्स की वजह से दे आर बेसिक इन नेचर। बट डिड यू नोटिस वन थिंग कि इसने वाटर का H छीन लिया है। ये तो श्योर है कि ये वाटर से मोर बेसिक होते हैं, दे आर मोर बेसिक देन वाटर। ओके, और ये जो स्टेप है ये कंप्लीट नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है, राइट। और जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 and concentration of water. We all know water is taken in excess, so its concentration will be constant. इस constant को इधर ले जाओ, K into H2O की concentration, ये दोनों मिलके एक नया constant बना देंगे जिसका नाम है Kb, and Kb is known as basicity constant. Basicity constant is equal to this concentration of products upon concentration of reactant amine. You know, यहीं से पता चल रहा है कि higher the value of Kb, higher is, इसकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, higher is basic character. But these days pKb is in fashion, pKb फैशन में है, तो pKb is equal to minus log of Kb. मीन्स अगर Kb ज्यादा होगा तो pKb कम होगा, और pKb जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, राइट। सो amines are basic in nature because of presence of plus I effect which will increase the electron density on nitrogen. In water we will get these two products. इक्विलिब्रियम को देखें तो हमको एक बेसिसिटी कांस्टेंट, एक नया वर्ड मिल गया, इसकी वैल्यू ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पीकेबी का आता है, तो पीकेबी जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, राइट। अब उसके बाद चलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, राइट। ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन, एंड दिस इज टर्शरी एमीन, राइट। इसमें एक प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है नाइट्रोजन को, इसमें दो प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें 3 दे रहे हैं। इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि इसका बेसिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन के ऊपर। यस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, right? But this will happen in the gas state. गैसियस स्टेट में बिल्कुल यही फॉलो होगा, लेकिन जैसे ही आप तीनों एमीन्स को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो सीन थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? तीनों वाटर में जाएंगे, प्राइमरी वाला RNH3+ बना लेगा वाटर में जाके, और सेकेंडरी वाला R2NH बना लेगा, NH2 सॉरी, और टर्शरी वाला R3NH बना लेगा। These are the conjugate acids of primary, secondary and tertiary amines. अब ये क्या करते हैं? वाटर कहते हैं भाई इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि 3 H बॉन्ड बनाएगा। सी RN ये वाटर के साथ 3 H बॉन्ड बनाएगा, ये देखो। तो वाटर बोलता है भाई मुझे प्राइमरी वाला बहुत पसंद आया, 3 हाइड्रोजन लेके आया और मेरा तो H बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सेकेंडरी वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है इसके 2 H बॉन्ड बनेंगे। टर्शरी से नाराज है वाटर, वाटर कहता है यार तेरा तो एक ही H है खाली, तो एक ही H बॉन्ड बनेगा। तो वाटर कहता है मेरे हिसाब से अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखें
तो वाटर सेज मेरे ख्याल से प्राइमरी वाला मोर बेसिक है सेकेंडरी से, और टर्शरी वाला सबसे कम बेसिक है। अब प्लस आई की और कॉन्जुगेट एसिड की हो गई लड़ाई, किसमें? वाटर में। गैस फेज में तो क्लियर है ना, लेकिन वाटर में तीनों की होगी लड़ाई। अब फायदा किसको मिलेगा? दोनों में सेकेंडरी कहाँ पड़ा हुआ है? बीच में, तो फायदा कौन ले गया? सेकेंडरी वाला। अब इसका कंक्लूजन है कि सेकेंडरी वाला मोर बेसिक है, ये बेसिक कैरेक्टर शो हो रहा है, सेकेंडरी वाला मोर बेसिक है। अब लड़ाई रहेगी दो लोगों के बीच में, टर्शरी में और प्राइमरी में। इधर प्राइमरी टर्शरी कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, प्राइमरी कहता है मैं बड़ा हूँ। बताओ किसकी बात मानी जाएगी? एच बॉन्डिंग तो हद से हद कितने कार्बन तक होती है? 6 तक, उसके बाद तो चलती ही नहीं है, इसलिए टर्शरी जीत जाता है। सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी, दिस इज द फाइनल बेसिक कैरेक्टर। ये फाइनल बेसिक कैरेक्टर होता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। अब एक जगह पर एक्सेप्शन है, क्या? इसमें सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी कब होगा? जब R की जगह पे मिथाइल ग्रुप ले लिया जाएगा। जब आप R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लेते हैं उस वक्त सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी हो जाएगा, राइट? तो ओवरऑल हमने सीक्वेंस क्या देखा कि सबसे वीक बेस कौन है? एनिलीन। किससे? अमोनिया से भी वीकर है। फिर अमोनिया वाला सबसे इधर आएगा, टर्शरी वाला। फिर उसके बाद है प्राइमरी वाला, सबसे ज्यादा सेकेंडरी होगा। ये प्राइमरी कब आएगा? जब R की जगह मिथाइल होगा, और अदरवाइज प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी आएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर सेकेंडरी का है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिक कैरेक्टर। अगर एनिलीन पे कुछ ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो क्या इसके बेसिक कैरेक्टर में चेंज आएगा? लेट अस सी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन। मींस अगर हम एनिलीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं तो उनका इफेक्ट्स देखते हैं क्या आता है, राइट? अगर हम एनिलीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाते हैं, यू नो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक मिथाइल, एक और NH2 भी रिलीजिंग ग्रुप होता है, OH, OR, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देंगे, बेंजीन नाइट्रोजन को देगा, और नाइट्रोजन के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक दीज इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। और अगर एनिलीन के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जो इलेक्ट्रॉन छीनता है, कौन कौन है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? NO2, CN हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये बेंजीन से लेंगे, बेंजीन नाइट्रोजन से लेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और बिजी हो जाएंगे अंदर बेंजीन रिंग के, और बेसिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, राइट? बट इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये रहा हमारा एनिलीन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर पैरा पे पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इट इज द डिक्रीज इन basic character of aniline when electron releasing group or electron withdrawing group is attached at ortho position। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इफेक्ट की आपस में कैंसलेशन हो जाती है। कौन सी? एक इनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, और दूसरा, अरे रश बहुत हो रहा है यहाँ पे, NH2 इसको बोलते हैं, थोड़ा साइड पे हो जाए, रश बहुत हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड स्टीरिक इफेक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्थो इफेक्ट। अब आपको मैं एक तो क्वेश्चंस कराती हूँ।
इसके। अब आप इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, राइट। फर्स्ट पेयर इज CH3 whole thrice N and CH3NH2, and second pair is aniline and orthomethyl aniline, राइट। और इसको आप अरेंज करेंगे, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, राइट। NH3 aniline, C2H5 whole thrice N, C2H5 whole twice NH and C2H5NH2, राइट। इनमें किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा? ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे टर्शरी है। देखो अब मैंने यहाँ पे गैस फेज नहीं लिखा, अगर तो गैस फेज होगा तो गैस फेज मेंशन होगा, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप उसको एक्वस में ही मानेंगे, राइट। सो टर्शरी है, ये प्राइमरी है, तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? इसका। वाई? बिकॉज आर की जगह पे मिथाइल लगा हुआ है, राइट। इन दोनों में से हम सबको पता है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है? सेकेंडरी का, राइट। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, इसको हम नंबर दे देते हैं। इसका बेसिक